Sir, it is already 11, so we can start. Yeah, Swati? okay. Yes, sir. Yes, yes. You can go ahead. Okay, sir. Thank you. Jai Hind and a very good morning to one and all present over here. Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is my co-host Vishal Prasad. are very proud to be the host for this national webinar session. Before we get started, I'd like to express my gratitude to the dignitaries present here and the participants. Today, we are presenting this national webinar on the topic Life After PGDM and MBA. For this, we are having with us Professor Sanjay Saxena sir to solve the doubts of how people have some inhibitions and doubts about the future. Just a little housekeeping before we Hello, get started. If you have any questions, please type hello, them in the sir. chat box. Bring up during the presentation. Just a second, Swati Rishi Singh. Presentation, and we will have आवाज क्लियर नहीं है सर. ठीक है. You can drop a message. Mm-hmm. Go ahead. just a little housekeeping before we get started. If you have any question during, please type them into the chat box. Vishal will bring them during the presentation, and we will also have time for questions at the end. Moving ahead, let's discuss the rules of webinar. You have to mute your mic and you have to turn off your video also. Whatever we doubt is, just write in the chat box. And also at the end of the session, we will discuss it. I am very glad to welcome Dr. Sanjay Saxena, Professor, Chairperson, Center for Digital Learning. He is experienced consultant and training with a demonstrated history of working as management professional, professor, consultant, and trainee in business management. He is skilled in marketing research, strategic management consultancy, strategic positioning, and developing innovative strategies. Training on leadership, selling dynamics, organizational development, stress management, conflict management, life skills, and multiple intelligence. He carries more than 12 years of industrial experience and also teaching and research experience of more than 15 years with him. He has presented and attended more than 10 national and international conferences and seminars. He has 8 paper publications to his credit till date, both in national and international, including 2 books. Did more than 200 workshops. He has also taken the responsibility of Chairperson Center for Digital Learning. And his area of interest includes strategic management, organizational behavior, sales, and marketing. Over to you, sir. Well, thank you for introduction. Thank you to Kartikeya and Viresh for organizing this webinar for all 4th semester students of PGDM and MBA. So let me just share my presentation with all of you. Are you all watching my presentation? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine. So in fact, the topic of today is very interesting, that life after MBA and PGDM. And question is why I have selected this particular topic. Because you all are at the verge of passing out of your college and completing your MBA and PGDM within some time. Because of COVID-19, in fact, you are little late, but anyway, 2-3 months. Then after that, you would be joining business organizations as management professionals.
So topic of today is that what is the scenario right now in the business organizations, in the market, and exactly what kind of skills you require to survive in that particular hard market. So, in fact, the objective of today's presentation is first to make you acquainted with what exactly is the scenario right now in of the industries, and at the same time, what you have to do in order to surpass everyone and become the champion management professional. So that is why I have chosen this topic. Let us start that what exactly are the scenario. In fact, let us start with your 2 year back while pursuing your MBA or PGDM course. In fact, everyone was supporting you, including your parents, your friends, your relatives, your classmates, your teachers. So everyone since last 2 years is supporting you to become the best management professional. Your parents are in fact supporting you financially and at the same time emotionally. Your friends and your classmates are supporting you emotionally, and at the same time your teachers are supporting you academically to develop yourself as the best management professional. But at the same time, after completing your course, suddenly you will find that you do not have any support from any stakeholder of your life, in fact. So everyone will start asking you questions. So instead of support, they have expectation from you that what next, what you are going to do, and everybody would be expecting from you a great performance, expecting success from you, expecting that you will establish yourself as the best management professional. So in that way, suddenly you feel that now the ball is in your court and you have to play the game. Uh, the enjoyment time of the college would definitely become over, and action time starts. So that's what is the going scenario after just passing your MBA and PGDM course. Let me show you that if you are joining a job, be confident that in your job, by default, you will get the boss like this. You just observe the picture and be ready to face the boss like this. I think those who have worked in the corporates, they know how the bosses are behaving. At the same time, you are all alone to perform and show your worth. So the education which you have taken, with that you have to perform in the scenario something like this. Maybe you can face a lot of hardships while starting your career, and this is what is the scenario we are facing. Yeah. Sorry Yes. to interrupt you, sir. Sir, you need to present again, sir. Your presentation has stopped, Uh-huh. sir. You need to present your screen Present my again, sir. screen again. Okay. Yes. Sir. Students, please do not present your screen. Okay. Let me just go back to. Uh, your screen is coming. Okay, no problem. I'll share. Now it's coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's fine, sir. Okay, it's fine. Okay, okay. Immediately just inform me if you're not watching my Actually, presentation. So what I was saying that, okay, in yes, between, tell if me. some students present his screen, then it goes backward. So I'll inform you. I'll Okay. keep on informing you. Okay, no problem. So now you're watching. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. It's on. all the students be confident that in your job by default you are going to get the boss like this. So that's that picture I was showing to you. Uh, then you will be all alone to perform and show your worth with all your skills and competencies that you have acquired during these 2 years, and even in your entire graduation schooling and your college.
So you have to apply everything to survive in this kind of situation. Don't be disheartened. I'm going to tell you that how to come out of this situation. Then, in fact, due to COVID-19, there is deep economic recession across the globe, across the industry. So definitely this would be very challenging, especially the batch which is coming out now. They are going to face this challenge because you already know that the business says are all time down, no purchasing is taking place, and every company, every industry is facing this recession. Even the health industry is facing recession. I was talking to one of my client, hospital client. They were saying that हम लोग को तो ये पता था कि हॉस्पिटल और मेडिकल उसमें रिसेशन नहीं आता है, लेकिन इस कोविड-19 में ये समझ में आया कि फार्मा इंडस्ट्री में भी और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी रिसेशन आ जाता है. So now they are facing problem to pay salary to their employees. एक हॉस्पिटल है जिसकी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ और वो हॉस्पिटल के 500 एम्प्लॉइज हैं एंड उनकी जो इनकम है वो सडनली ड्रॉप हो गई है बहुत ज़्यादा. तो दे आर हर रोज मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे और कैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे. तो ये सिनेरियो जो है अक्रॉस द ग्लोब है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है. So nobody can help. But anyway, we will come out of this situation. And because of this recession, what is going to happen is that supply of human resource will definitely enormously exceed demand. तो होगा क्या कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ज़्यादा होंगे और डिमांड कम होगी. ऑलरेडी कम थी और अब कोविड-19 के बाद थोड़ी और ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि कंपनीज वुड बी रिलक्टेंट टू हायर new professionals and they would try to go for automation and digitization. तो ये एक नया सिनेरियो इमर्ज हो रहा है एंड डेफिनेटली आने वाले समय में कंपनीज वुड बी restricted in terms of hiring new professionals. I'm not saying they would be dead in hiring, but definitely they will slow down their hiring and they will reduce the number of hires. So that is going to happen. And of course, there would be no place for average performer. So ये आप लोग को अभी बहुत ध्यान रखना है कि एवरेज परफॉर्मर की अब जगह बचेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मली एवरेज परफॉर्मर होता क्या है? एवरेज परफॉर्मर वो होता है जो एक रूटीन जॉब, जो एक डेली एक रोबोटिक जॉब करता है और जितना उससे कहा जाता है उतना वो परफॉर्म करता है. तो जो आप रूटीन जॉब करते हैं, जो एक डेली जॉब करते हैं, वो एवरेज परफॉर्मेंसेस इसलिए वो सरवाइव नहीं करेंगे क्योंकि वो परफॉर्मेंस सारी डिजिटाइज हो जाएंगी, सारी ऑटोमेटेड हो जाएंगी. इवन टीचिंग प्रोफेशन में भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेटेड हो जाएंगे और ऑटोमेटेड टीचिंग होगी. जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स को देखें, हार्वर्ड को देखें, सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने ऑटोमेटेड MBA प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं. तो आप उनको ज्वाइन करें ऑनलाइन और वीडियोस वहाँ पर हैं, लेक्चर्स वहाँ पर हैं. देयर इज नो नीड फॉर ए टीचर इंटरफेस. और इसी तरीके से सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स साइड में बहुत सारे ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स आ जाएंगे. तो जो एवरेज परफॉर्मर है, डेफिनेट those who are performing their routine job would be automated and digitized and there would be no requirement for humans. So this is what is the scenario because span of control बढ़ जाएगा. Span of control का मतलब ये है कि एक इंसान जो पहले सपोज करिए 15 लोगों को डील करता था या 100 लोगों को डील करता था, थ्रू डिजिटल सोर्सेस वही पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स अब 1000 लोगों को डील करेगा, 1 लाख लोगों को डील करेगा. तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा. तो आप सभी मैनेजमेंट के प्रोफेशनल हैं तो आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल तो मालूम ही है. So let me just go further. So repetitive and routine jobs are getting automated and digitized. And
स्पेशली कोविड के बाद से तो सारी इंडस्ट्री में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने सारे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को डिजिटाइज कर दें और ऑटोमेटेड कर दें। तो प्रोडक्शन यूनिट्स में भी, जिसमें कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, मशीन्स के थ्रू करेंगे, तो कोविड-19 आए या सार्स आए या कोई भी वायरस आए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो डेफिनेटली कंपनीज आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन। तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन इस सिनेरियो में भी आज की डेट में कॉरपोरेशंस आर लुकिंग फॉर रेयर एंड इनिमिटेबल एम्प्लॉयज। कोविड-19 के पहले भी और जो ये इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो वैल्यूएबल एम्प्लॉय खोजती थी। वैल्यूएबल एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपको अपने फील्ड की नॉलेज है, यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स, और आप एक रूटीन जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यू आर सिंसियर, यू आर डिसिप्लिन्ड, तो वो एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय होता है। यू हैव एडिक्वेट एजुकेशन एंड रेलिवेंट डिग्रीज टू परफॉर्म द जॉब। लेकिन वैल्यूएबल एम्प्लॉय के बाद कुछ एक लेवल ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयज अपने अंदर डेवलप करते हैं, कुछ एक लेवल ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन अपने अंदर लाते हैं, अपनी फिलॉसफी में कुछ चेंज लाते हैं, अपनी थिंकिंग में कुछ चेंज लाते हैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो रेयर हो जाते हैं, वो एम्प्लॉयज कम पाए जाते हैं। तो कंपनी उनको ढूंढ रही है जो रेयर हैं, जो रेयरली अवेलेबल हैं। और जब आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल एक लेवल से ऊपर चली जाती है, जब आप टू द पॉइंट हो जाते हैं, जब आप क्रिएटर हो जाते हैं, जब आप एक बहुत ही वैल्यू एडिशन करना सीख जाते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, और तब आप इनिमिटेबल हो जाते हैं। आपको इमिटेट नहीं किया जा सकता, आपको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, आपको डिजिटाइज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर वो लेवल ऑफ स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। सो एक लेसन तो यहाँ हमें मिलता है कि सिचुएशन डेफिनेटली आने वाली बहुत टफ है कॉर्पोरेट में, और एवरेज परफॉर्मर्स की जगह नहीं है। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट के जो MBAs हैं और जो PGDMs हैं, वो अगर अपने आप को रेयर और इनिमिटेबल एम्प्लॉय की कैटेगरी में ले आए, तो डेफिनेटली दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो जो भी सिनेरियो मैंने डिस्क्राइब किया अभी तक, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू विल एक्सेल एंड यू विल सरपास एवरीवन एंड यू विल कम आउट एज चैंपियन मैनेजमेंट प्रोफेशनल। So let us see how you can make yourself rare and inimitable employee. So this is what I want to explain, that how can you come up as champion and leave everyone behind. Let me go further. To become rare and inimitable person, you need to change yourself drastically. अभी आपकी जो existing level of अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, फिलॉसफी है, एक हैबिट है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसमें एक चेंज लाने की जरूरत है। बहुत ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, और वो चेंज लाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन उस चेंज को लाने के लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और तभी आप उस चेंज को ला सकते हैं। और एक बहुत सीरियस एफर्ट्स चाहिए उस चेंज को लाने के। तो लेट मी जस्ट show you that what changes are required. The very first thing, what you have to do, that you have to add value to your degree. ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट थिंकिंग है। अगर आप देखें तो आपने किया MBA और PGDM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी से। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की अपनी एक ब्रांड है, अपनी एक पोजीशनिंग है, इसके बारे में कॉर्पोरेट में और मार्केट प्लेस में एक अपना परसेप्शन है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज BHU है, सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सारे IIMs हैं, IMT है, जयपुरिया है, MDI गुड़गांव है, SP जैन है, नारसी मंजी है। तो सबकी अपनी अपनी एक पोजीशनिंग है, अपनी अपनी एक ब्रांडिंग है।
तो डेफिनेटली उनकी ब्रांडिंग में क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है। तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स कभी कभी ये गलती करते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए दो तीन काम करते हैं। जैसे कि वो अपने करिकुलम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी टीचिंग को और बेटर करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड करती हैं डिग्री में। द रियल वैल्यू एडिशन जो डिग्री में होता है, जो ब्रांडिंग में होता है, वो दो स्टेक होल्डर से होता है। एक तो होता है जो कंपनीज आपको हायर करती है, तो आपको कंपनीज हायर कौन सी कर रही है, उससे आपकी एमबीए डिग्री की वैल्यू घटती है या बढ़ती है। तो अगर आपको मिठाई लाल एंड सन्स एक मैकेनिक हायर कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर आपको हायर कर रही है गोदरेज, टाटा, रिलायंस और भी टॉप कंपनीज, इंफोसिस है या गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो डेफिनेटली आपकी एमबीए की वैल्यू जो है, पीजीडीएम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो जो कंपनीज हैं डेफिनेटली दे ऐड वैल्यू, लेकिन इनको भी इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। और जो दूसरा स्टेक होल्डर है जो डिग्री पे वैल्यू ऐड करता है, वो होता है हमारा स्टूडेंट, जो हमारे पास आउट होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उस डिग्री को होल्ड करते हैं। वो कितने रेयर हैं और कितने इनइविटेबल हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपकी एमबीए डिग्री की वैल्यू क्या है। आप एसएमएस से एमबीए करें, आप आईआईएम से करें, आप एफएमएस से करें, डजंट मैटर, लेकिन उस ब्रांड को एक्सीड कर सकते हैं आप, दूसरी ब्रांड्स को पीछे छोड़ सकते हैं आप, अगर उस डिग्री में आप वैल्यू एडिशन करें। और डिग्री में वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर वैल्यू ऐड करना है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू आप अपने अंदर ऐड करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप दूसरे एमबीए डिग्रीज को पीछे छोड़ते जाएंगे। सो द थिंग्स आर देयर इन योर हैंड। तो अपने हाथ में है कि आपको आईआईएम की डिग्रीज को पीछे छोड़ना है, तो आपको अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। एसएमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एफएमएस के टीचर्स की वैल्यू बढ़ाने से आपकी डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी जितना अपने अंदर आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप एक्सटर्नल चीजों को तो बहुत ज्यादा ऐड चेंज नहीं कर सकते, बट अपने आप को तो आप चेंज बहुत आराम से कर सकते हैं। आज की डेट में बिलीव मी, I have traveled across the world. Last 15-13 years I have traveled. और बिलीव मी, जहाँ भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ भी मैं बात करता हूँ, कोई मेरे से पूछता नहीं है कि आपने अपनी डिग्री कहाँ से की, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आप कैसे थे पढ़ाई में। बिकॉज जो आपका लेवल है और जिस स्टैंडर्ड पे आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपने जहाँ से भी किया है बहुत वैल्यूबल है। So you have to change that, and the first thinking should be that I have to add value to my degree. जो पास आउट होने के बाद आप करेंगे, पास आउट होते समय सबकी नॉलेज लेवल ऑलमोस्ट एक ही टाइप की रहती है। अगर आप ज़्यादा सिंसियर हैं तो आप भी उतना ही जानते हैं जितना बीएचयू का प्रोडक्ट जानता है, जितना आईआईएम का प्रोडक्ट जानता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके एप्लीकेशंस में ऊपर नीचे हो, बट ऑलमोस्ट जस्ट सेम। बट देन you have to add certain values in order to make yourself rare and inimitable. अब समय आता है सबसे दूसरा जो आपको स्टेप लेना है, you have to change your philosophy. बचपन से हमारे अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है, एक सोच डेवलप होती है किसी भी चीज को करने में, और ये सोच दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आती है, दूसरे हमें सिखाते हैं। और आपने ओल्ड थिंकिंग सुनी होगी कि डू व्हाट यू आर पैशनेट फॉर। आज भी बहुत से ट्रेनर्स हैं, बहुत से लोग हैं, वो आपको बोलते हैं कि वो करो जिसमें आपका पैशन है। और शायद मैं भी अपने लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज बोलता हूँ, लेकिन उनको अब नहीं बोलता जो मास्टर्स कर चुके हैं। जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, जो लोग स्कूल्स में हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, बट ये चीज बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती है आफ्टर सर्टेन टाइम। सो बिकॉज उसका कारण ये है कि फॉर यू
being a master's in business administration, it's time for action. Definitely, you do not have time to search your passion again. कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ के किसी भी मोमेंट पे आप अपने आप को डिसरप्ट कर सकते हैं, अपने पैशन की तरफ जा सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे टॉप क्लास बिजनेस प्रोफेशनल बनना है, तो मेरे ख्याल में अगर आप एमबीए करने के बाद शुरू करते हैं अपना पैशन सर्च करना, तो यू आर गोइंग टू वेस्ट अगेन योर टाइम, एंड बिकॉज यू नीड अनदर 2 to 3 years टू नर्चर योर पैशन. तो उतनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू गो फॉर न्यू थिंकिंग, दैट इज डेवलप पैशन फॉर व्हाट यू डू. तो जो चीज आप कर रहे हैं उस पे पैशन अपना डेवलप करिए. तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस जॉब के कॉन्टेक्स्ट में अपना पैशन डेवलप करिए. आई थिंक मैंने अपने लाइफ में बहुत ये मिस्टेक की है, क्योंकि मैंने अपना करियर जो है वो सियाम ट्रांस ग्लोबल एक कंपनी थी थाईलैंड में, बैंकॉक में, वहां से मैंने अपना करियर शुरू किया. और वो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी थी. ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर ऑर्गेनाइजिंग टूर ऑपरेशंस. तो मुझे ऐसा लगा कि ये एरिया मेरा नहीं है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है. तो जॉब तो मैंने किया, बट पैशन कभी डेवलप नहीं किया उस एरिया में, और मुझे पता नहीं क्यों उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था. तो 3 साल करने के बाद मैंने अपने जॉब को चेंज किया, एंड देन आई ज्वाइंड नेरोलैक पेंट्स, जो आज के डेट में कंसाई नेरोलैक के नाम से जानी जाती है. उस समय गुडलस नेरोलैक पेंट्स होती थी. तो उसमें मैंने ज्वाइन किया और 7 साल काम किया उस कंपनी में. लेकिन 7 साल काम करने के बाद भी कभी भी मुझे पैशन नहीं आया उस पेंट इंडस्ट्री में. तो मैं यही सोचता था कि ये तो मेरी जगह नहीं है, मुझे कुछ दूसरे जगह जाना है. और बिलीव मी, पूरे 10 years मैंने बर्बाद किए, क्योंकि मैं चाहता अगर मैं उसमें अपना पैशन डेवलप करता तो शायद बहुत टॉप क्लास पोजीशन में पहुंच सकता था, बहुतों को पीछे छोड़ सकता था और एक बहुत जल्दी ही एक टॉप पोजीशन में स्टैब्लिश हो सकता था. उस पोजीशन में आने में मुझे फिर 10 साल और लग गए, क्योंकि शुरुआत में मैंने यही सोचता रहा कि मैं दूसरी कुछ करूंगा, एंड आई एम जस्ट सर्वाइविंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो ये गलती मैंने की थी, लेकिन आप मत करिएगा, क्योंकि आप भी ऐसा सोच रहे होंगे. मुझे पता है कि जिन लोगों की जॉब लग गई होगी वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि कुछ दिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ अच्छी कंपनी मिलेगी तो शिफ्ट हो जाएंगे. तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक करेंगे, सरवाइव करेंगे, या अपना कोई बिजनेस 3 साल बाद स्टार्ट करेंगे. तो अल्टीमेटली आप वो 3 साल तक आप बिना पैशन के काम करेंगे और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझे ये मेरी जगह नहीं है, मुझे कुछ और करना है. तो यहाँ पे आप एवरेज परफॉर्मर हो जाते हैं. और ऐसे तो लोग कहते हैं कि 21 दिन कोई काम करो आपकी हैबिट बन जाती है. जब आप 3 साल तक कोई एक पर्टिकुलर वे में काम करेंगे तो आपकी हैबिट क्या, आपके दिमाग में हाईवे बन जाएगा और उस हाईवे को फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा. तो मुझे लगता है कि आज ही से यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग एंड गो फॉर कन्वर्टिंग योर प्रोफेशन इनटू पैशन. तो जो भी प्रोफेशन आप ज्वाइन करने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और ज्वाइनिंग ए कंपनी, और डेफिनेटली दोज हु आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट्स, वो भी किसी और आगे आने वाले समय में जो भी चीजें करने जाएंगे, दे हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन इनटू पैशन. In fact, you have to convert your job into a hobby. पहले हम लोग के समय में कहा जाता था कि जॉब मेरी ये है और हॉबी मेरी ये है. तो मैं अक्सर देखता था कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि गिटार बजाना, गाना गाना या सोशलाइजिंग करना, ये सब मेरी हॉबी है, और जॉब तो मैं करता हूँ एक अलग इंडस्ट्री में, एक अलग फ्रेमवर्क में. तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप करते सेल्स हैं और हॉबी आपकी जो है वो एजुकेट पढ़ाई होती है, बुक पढ़ना होता है. तो ये जो कंट्रास्ट है ये आपके लाइफ में आपको एवरेज परफॉर्मर बनाता है, आपको रेयर नहीं रहने देता, आपको इनिमिटेबल नहीं बनने देता.
तो इम्पॉर्टेंट मंत्र यहाँ पर यह है कि आपको जॉब को ही हॉबी बनाना है। तो गॉन आर द डेज when professionals were thinking that after doing some work we will take a break and then we will go for enjoyment tour and then again we will come back and join our job। वो समय चला गया। अब आपको जॉब को अपनी हॉबी बनाना है और जॉब को ही enjoyment टूर समझना है। So there is no gap, you are always on duty and you are always doing your job and enjoying your job। उसी जॉब में से आपको enjoyment ढूंढना है और वो तब होगा जब आप पैशन अपना इसके अंदर डेवलप करेंगे। और मैं एक चीज और बताऊं कि कई बारी मैं जब रोड पे चलता हूं तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि देखो मगर प्यार से। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को आप थोड़ी देर देखें और प्यार से देखें तो आपको उस चीज से प्यार हो ही जाएगा। तो अगर आप अपने जॉब को उस वे में देखेंगे, अपने जॉब को उस प्यार से देखेंगे, उसको देर तक स्टेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे इंजॉयमेंट दिखने लगेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें दिखने लगेंगी। होता क्या है कि हम उसको देखने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो कभी कभी जब आप किसी चीज को के अंदर जाने से पहले ही उसको आप रिजेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप उसकी ब्यूटी को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इंटेंशनली कॉन्शियस माइंड से आपको एफर्ट डालना है टू सी दैट व्हाट इज इंटरेस्टिंग एंड कॉन्शियसली आपको उसके साथ थोड़ी देर रहना है। जैसे कई बारी अपने लाइफ में होता है कि सबकी तो लव मैरिज नहीं होती है लेकिन सबकी मैरिज हो जाती है। तो समहाउ people when people start living together they develop some kind of bonding with each other। उसी तरीके से जब आप जॉब में engrossed होंगे तो डेफिनेटली उसके साथ आप एक बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड ये माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 24/7 यू आर ऑन ड्यूटी एंड 24/7 यू आर ऑन ड्यूटी मीन्स फिजिकली आप उस जॉब में हर समय ऐसा नहीं है कि दौड़ भाग रहे हैं, बट मेंटली आप हमेशा सोचते हैं कि मैं वैल्यू एडिशन कहाँ से करूं, कैसे करूं और कैसे मैं एक डिफरेंट एम्प्लॉय बन के सामने आऊं, एक यूनिकनेस में प्रोड्यूस कर पाऊं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग टू ऐड वैल्यू। लेट मी गो फर्दर। द सेकेंड पार्ट इज टुडे you have to be a creator। It means it's not about doing a job, it's about creating something। So जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो आप जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आपके माइंडसेट में कि आप जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू डिमांड, you are going to create new business for the organization or for your organization। you are going to create new level of satisfaction among your customers। you are going to create new level of excellence in your performance। new level means which is beyond current imagination। तो एक ऐसा लेवल आप क्रिएट करने जा रहे हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स उसको इमेजिन करते ही नहीं। तो यू हैव टू create that level of excellence, that level of curve, or you have to create the new curve of revenue। तो जो revenue exactly generate हो रहा है आपके particular job area में, आप एक नया level of curve create करने जा रहे हैं। So you are going to jump the curve। और एक बहुत बढ़िया philosophy है इस फील्ड में कि जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत से कंपनीज में सेल्स पीपल से डिस्कस भी करता हूँ, that you go for double the game philosophy। मुझे याद है कि जब मैंने नेरोलैक पेंट्स ज्वाइन किया था तो हमारे मैनेजर ने ही हमको समझाया था कि संजय, जब तुम बजटिंग कर रहे हो, जब अपने सेल्स टारगेट्स डिसाइड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मत डिसाइड करना। हार्डली 15% की ग्रोथ लगा के अपने टारगेट सेट करके हायर मैनेजमेंट में भेजना, जिससे कि वहाँ पर वो उसको ऑटोमेटिकली 25% कर देंगे, लेकिन फिर भी वो अचीवेबल होगा।
और तुम अचीव कर पाओगे 25% टारगेट ओवर लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। तो जब अचीव करोगे तो तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगी, कंपनी कहेगी कि देखो ये एक अच्छा मैनेजर है जिसने अपने डिपो की टारगेट 25% अचीव की। लेकिन मुझे उस समय, और मैंने उस चीज को सीखा भी और मैं उस चीज को करता भी था कि मैं 15% की ग्रोथ लगा के अपने टारगेट्स अपने डिपो एरिया का, जहाँ पे मैं मैनेजर था, उसको भेजता था हायर मैनेजमेंट। और वहां से फिर वो ऑटोमेटिकली 25% का टारगेट कन्वर्ट होके आता था एंड आई वॉज हैप्पी। क्योंकि अगर मैं 25% की ग्रोथ पे टारगेट भेजता तो वो शायद 35% या 40% का ग्रोथ लगा के वो भेज देते। आई वॉज प्लेइंग साइकोलॉजिकल गेम विद देम। तो मुझे लगा कि मैं इस गेम में विनर हूं क्योंकि मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि मैं विनर नहीं था, मैं लूजर था एक्चुअली। मैं उन अपने हायर मैनेजमेंट से साइकोलॉजिकल गेम तो जीत गया, लेकिन शायद अपने लाइफ का गेम मैं हार गया। और अ, ये चीजें अब मुझे समझ में आती हैं, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लाइफ में, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि प्रॉब्लम वहां नहीं है कि आप एक बहुत हाई टारगेट अचीव सेट करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है तब जब आप एक लो टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो लो टारगेट सेट करके उसको अचीव कर लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, क्योंकि उससे आप एकदम एवरेज एम्प्लॉय हो जाते हैं। रेयर और इनिमिटेबल तो बहुत दूर की चीज है। So being a creator, you have to set your own targets and you have to go for double the game. डबल द गेम का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको बोल रही है कि लास्ट ईयर ये आपकी परफॉर्मेंस थी एंड नॉट दिस ईयर यू आर गोइंग टू गो फॉर 25%। आप बोलो छोड़िए 25%, आई एम थिंकिंग ऑफ डबलिंग द गेम्स। बिकॉज मेरे को जिंदगी भर जो है ये 25-25 करके लाइफ नहीं बितानी है। आई हैव टू गो फॉर डबल द गेम, सरपास एवरीवन एंड आई हैव टू रीच ऑन टॉप। उसको करने के लिए मुझे जाना है। तो ऑफ कोर्स जो है, जहाँ चाह है वहां राह है। तो जब हम सोचते ही नहीं है, जब हम रिजेक्ट ही कर देते हैं और मान लेते हैं कि हम 25% से ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाएं कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, मैं डबल करूंगा, तो शायद हो सकता है प्योर डबल ना हो पाए, लेकिन फिर भी 90-95% आप पहुंच सकते हैं। तो सडनली आप अपनी एक ऐसी प्लेस क्रिएट करेंगे जहां पे आसपास आपके कोई कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। तो ये चाहे आपकी अपनी कंपनी हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर डबल द गेम साइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी जो मैंने अपने लाइफ में नहीं अपनाई थी। मैं, मुझे ये कन्फेस करने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने ये चीजें नहीं की थी और मैं एक बहुत ही एवरेज एम्प्लॉय बन के रह गया। टारगेट तो अचीव किए थे मैंने, लेकिन मैं यही सोचता था कि 6 साल 7 साल हो गए काम करते हुए और अभी तक मुझे कोई बहुत खास प्रमोशन नहीं मिला है। क्योंकि कंपनीज भी कम चालाक नहीं होती हैं, वो भी आपको हल्का फुल्का लेटरल प्रमोशन देती रहती है जिसका कोई बहुत गेन नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे उतना ही जॉब करना है जितनी मुझे सैलरी मिल रही है, और वही जॉब करना है जिस जॉब के लिए मुझे सैलरी मिल रही है, और एम्प्लॉयर भी कम नहीं है, वो ये सोचता है कि आपको उतनी ही सैलरी देनी है जो आप, जितना आप काम कर रहे हैं, और उतनी ही सैलरी देनी है जितने के लिए आप छोड़ के ना भागें इधर उधर। तो वो भी आपको एक कंटेनमेंट जोन में रखता है और आप भी अपने आप को एक कंटेनमेंट जोन में रखते हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है। तो ये जो गेम है, इट्स ऑल मेंटल गेम। और यहाँ से, इससे आपको बाहर आना है और बाहर आके आपको सारे इन चीजों को तोड़ देना है।
Kartikeya sir. Kartikeya sir. Yes, yes, Sir yes, has, yes, yes. exited the meeting or what? Sir, I think there must be some network issue. Yes. Let me talk to him. Let me talk to him. Okay, sir. Sir is not responding. Just I'm trying to connect to him. I'm going to drop a message. Okay, Everybody sir. should Not a stay problem. back. Just I'm trying to connect him. Kartikeya sir. Sir is going to join. Sir is going to join. There was some Kartikeya network sir. issue. Yes, yes. Okay. You can maybe even log out and log in again because recording is going on. He may not be allowed as well. Okay, okay. In the meanwhile, participant can drop their question in the chat box. Whatever query you are having, you can drop a question in the chat box. I'm trying to connect to sir. I think due to network issue, he's not able to join.
हेलो डियर एचआर सर। सर तब तक आप ही मोटिवेट कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली सॉरी, Now, sir is here. Yes. नेट चला गया था। Yes, sir. मैं Yes, कहाँ yes, yes. कहाँ तक मैं पहुंचा था? Sir, you were discussing this. Solution. Let be a creator, and in creator, people usually set low target and try to achieve that. Okay. I'll come back to this. Okay, sorry students, कुछ connection में problem आ गई थी. So I was discussing with you that you have to be a creator. So you have to create your own targets. You have to create your own salary. You have to double the game every time, and do not become average player in the industry. Yes, आप अभी इस समय क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कहना आसान है लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स ऑल माइंड गेम। और जितना ज़्यादा आप जैसे आप अपने माइंड को ट्यून करेंगे वैसे ही आप ये चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप अपने माइंड को लो ट्यून करेंगे तो डेफिनेटली लो ही अचीव होगा, और अगर आप हाई ट्यून करेंगे तो हाई अचीव होगा। और इस टफ इंडस्ट्री सिनेरियो में डेफिनेटली आपको ये अपने माइंड को चेंज करना जरूरी है, उसके पाथवेज को बदलना जरूरी है। Yes, Sir, sorry, sir. Please share your slide. Okay. You again explain. Okay, I'm sharing. This is also important part. Now it is coming. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. This is what is the problem when net goes. No problem. We have to just adapt with it. So I was talking to you that you have to be a creator in that way. So I think things are very clear to you that how to be a creator and what to do. Some sound is coming. I think. Beta, mute your mic. Yes. Okay. So ultimately, just to repeat again, being a creator, you have to create a new level of excellence. You have to create a new business. You have to create a new demand. You have to create a new level of customer satisfaction, and you have to create a new level of revenue. So you have to jump the curve and create something different, tangent of the sales revenue. So आप double the game पे जाएंगे, and definitely you have to be a creator. So there is a difference between doing a job and creating something. The third important thing is become a solution provider. यहाँ पर देखने में तो बड़ा इजी लगता है, क्योंकि आप बोलेंगे सर सोल्यूशन प्रोवाइडर तो हम लोग यही हैं और यही कहा जाता है, बट एक एवरेज सोल्यूशन प्रोवाइडर और एक एक्सीलेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर में बहुत डिफरेंस होता है। तो definitely I'm going to tell you something more than your understanding about this. Solution provider means there are two types of solutions. One is operational solution and another is strategic solutions, or you may say innovative solution or strategic solutions. तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, एंड नॉर्मली अगर आप रिसर्च डेटा उठा लें तो बहुत से मैनेजर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे ऑल आर गिविंग ऑपरेशनल सॉल्यूशन। प्रेजेंटली जो हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी सब रिएक्टिव हैं, बहुत ही ऑपरेशनल सॉल्यूशन चीज़ों के देते हैं, एक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसके 2-3 एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। द फर्स्ट एग्जांपल इज
कोरोना वायरस। तो अब उसमें अगर आप देखें तो ऑपरेशनल सोल्यूशन क्या है इसका? ऑपरेशनल सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू लॉक डाउन योरसेल्फ इनटू योर ओन प्रेमाइसेस, यू हैव टू maintain social distancing, you have to wear the mask, you have to keep yourself away from people so that coronavirus shouldn't impact you. एक बार हो जाता है तो आप फिर वेंटिलेटर पे चले जाए, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो वेंटिलेटर पे जाए और ट्राई टू सर्वाइव विद दैट वायरस। तो ये सब ऑपरेशनल सोल्यूशन है। जो रियल स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन आता है तब जब आप उसका कोई एंटीडोट, उसकी कोई मेडिसिन खोज लेते हैं या उसकी कोई वैक्सीन खोज लेते हैं, तो फिर वो परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो जब आप वैक्सीन लेके आते हैं तो एक बार आपने वैक्सीनेटेड होकर हो गए और फिर उसके बाद कोविड आपको वो वायरस आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाया क्योंकि वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बन जाते हैं। तो ये एक सोल्यूशन हुआ जो स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन है। इन ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर बहुत फ्रेजाइल गुड है जो जल्दी ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाता है, ब्रेकेज या डैमेज है, तो आपका ऑपरेशनल सोल्यूशन ये है कि उसको आप ठीक ढंग से ट्रांसपोर्ट करिए। उसको हमेशा देखा होगा कि पैकिंग में लिखा रहता है दिस वे आप और हैंडल विद केयर, तो हैंडल विद केयर करिए। लेकिन ये सारे ऑपरेशनल सोल्यूशन है डैमेज और ब्रेकेज रोकने के लिए, और ट्रांसपोर्टर को आप हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन उसका सिस्टम से आता है कि अगर आप उसकी कोई ऐसी पैकिंग डेवलप करें, ऐसी शॉक प्रूफ पैकिंग बनाएं कि वो पैकेजिंग के बाद फिर कितना भी ट्रांसपोर्ट करे वो डैमेज ब्रेकेज मिनिमम हो जाए। तो सोल्यूशन ढूंढना, एक स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन ढूंढना और एक ऑपरेशनल सोल्यूशन ढूंढने में, दोनों में फर्क है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको ये अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप हर चीज का एक स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन ढूंढ पाए, एक सिस्टम में चेंज ला सके, एक प्रोसेस में चेंज ला सके, एक प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज ला सके, या एक ऐसी सोल्यूशन दे सके जो चीज़ों को परमानेंटली क्योर कर सके और इरेडिकेट कर सके। तो ये जो क्वालिटी होती है इंसान की, ये उसको रेयर और इनिमिटेबल बनाती है। ये कोई रोबोट, ये कोई ऑटोमेशन, ये कोई मशीन सोल्यूशन नहीं दे सकती। मशीन्स हमेशा सोल्यूशंस जो देती हैं वो ऑपरेशनल सोल्यूशन होता है, दोज आर वेरी रिएक्टिव वन। बट अल्टीमेटली नए सोल्यूशन ढूंढना और वो भी स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन ढूंढना, ये एक टॉप क्लास मैनेजमेंट प्रोफेशनल का वर्क होता है। तो यू हैव टू बी अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन प्रोवाइडर। इसमें दो तीन चीज और मैं शेयर आपसे करना चाह रहा था कि जैसे सोल्यूशन कभी भी जो अपने माइंड की प्रोसेसिंग है, हम हमेशा वर्टिकल थिंकिंग करते हैं और हमेशा जो है सेम पैराडाइम में सोल्यूशन को ढूंढते हैं। और जब भी आप सेम पैराडाइम में सोल्यूशन को ढूंढेंगे तो आपको ऑपरेशनल सोल्यूशन मिलेगा, स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन के लिए आपको बियॉन्ड पैराडाइम जाना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटी सी आपको एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर चैलेंज तो ये है जैसे टू कनेक्ट all the 9 dots with 4 straight lines without lifting your pencil from the paper. But ये एक्सरसाइज कोई बहुत मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो जान जाते हैं वो उसको कर देते हैं। बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वहां पर इज द क्रक्स। तो लेट अस सी, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं without lifting the pencil, if you really want to connect all these 9 dots which are shown on this screen, you can start from here and you can move like this. तो 4 विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आप आराम से वो डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपने भी देखी है, इट इज वेरी कॉमन, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, बट नई चीज बताना क्या चाह रहा हूँ इसमें, दैट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक नंबर 3 एंड नंबर 4। जब आप वापस जाएं तो आप देखेंगे कि नंबर 3 नंबर 4 पे कोई पॉइंट है नहीं। एक्चुअली पॉइंट जो है वो नंबर 1 से शुरू होता है, 2 पे है, एंड व्हेन 9 डॉट्स आर देयर। तो ये 3 और 4 जो ये पॉइंट्स हैं जो इनविजिबल हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं,
लेकिन अगर आप जब तक इन पॉइंट्स पे नहीं पहुंचेंगे तब तक इन 9 डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर से मैं इसको चलाता हूं, तो आप देखेंगे कि नंबर 3 नंबर 4 पे जाने के बाद ये जो पॉइंट इनविजिबल है, विच इज बियॉन्ड योर पैराडाइम ऑफ 9 डॉट्स, यही पॉइंट जो ढूंढ लेता है वो स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाता है। So you have to develop your mind in such a way that context से हट के कुछ दूसरे पैराडाइम में जाके वहां से सोल्यूशन को ढूंढना अपने करंट प्रॉब्लम को। और प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में हो सकती है, प्रॉब्लम प्रोसेस में हो सकती है, प्रॉब्लम कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हो सकती है, प्रॉब्लम डिलीवरी में हो सकती है। डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का एक स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन होता है, लेकिन वो आपको उस पैराडाइम में नहीं मिलेगा। तो जब आपको उस पैराडाइम में नहीं मिलेगा तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर 9 डॉट्स। तो ये चीज समझने वाली है कि सोल्यूशन को कैसे हमें ढूंढना है, और ये हैबिट होती है और यू हैव टू फॉलो दिस हैबिट। तो इस हैबिट को आपको हमेशा फॉलो करना है, और अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और ले लें कि students are everyone is getting my voice? Okay. Yes, sir. Okay, no problem. Good. So जैसे देखें कि आजकल सारे टीचर्स बहुत बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है क्लास में, और स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी, नॉट मोटिवेटेड टू डेवलप देमसेल्व्स। तो अल्टीमेटली इसके ऑपरेशनल सोल्यूशन ही सब लोग सजेस्ट करते रहते हैं। ऑपरेशनल सोल्यूशन क्या है कि आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए। आप स्टूडेंट को बोलिए कि अगर नहीं आओगे क्लास में तो तुम्हारा जो है नंबर कम हो जाएगा। आप नहीं आओगे क्लास में तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। आप नहीं आओगे क्लास में तो आपको डिबार कर देंगे। आप जो है आपको सस्पेंड कर देंगे। या बहुत सारे हम कंट्रोल सिस्टम्स लगाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और फिर चेक लगाते हैं। फिर एक ये होता है कि जब स्टूडेंट नहीं आता है तो उसको फोन करते हैं कि तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए। तो कार्तिकेय सर ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये सारे ऑपरेशनल सॉल्यूशंस हैं, ये कोई स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर साल आपको स्टूडेंट मिक्स लॉट आती है। किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। तो कोई आता है क्लास में, कोई नहीं आता है, कोई आता भी है कॉलेज में तो कहीं छिप जाता है इधर उधर। तो अल्टीमेटली ऑपरेशनल सोल्यूशन आप ढूंढते रहिए और लेंस लेके उनको खोजते रहिए कि स्टूडेंट कहाँ है, वेयर आर माय स्टूडेंट्स। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप दीवारों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट रहता ही नहीं। तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन क्या है, तो मैं अभी उसका सोल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, लेकिन इसका कोई स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन ऐसा ढूंढना है कि स्टूडेंट्स के अपने अंदर से वो फोर्स आए कि नहीं, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू अटेंड। तो वो चीज आप, वो सिस्टम कैसे बना सकते हैं, और वो सिस्टम, वो जो सोल्यूशन है वो आपको इस 9 डॉट्स के पैराडाइम में नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा नंबर 3 या नंबर 4 पॉइंट पे, जो आपको दिख नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो इनविजिबल है पॉइंट्स है, इनको देख पाना एक रेयर एम्प्लॉय, एक इनिमिटेबल एम्प्लॉय की क्वालिटी होती है। तो इफ यू कैन सी इम्पॉसिबल, सॉरी, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन क्रिएट इम्पॉसिबल। तो ये सेइंग तो बहुत कॉमन है, लेकिन इनविजिबल देखना बहुत जरूरी है। तो कैन यू सी दैट, दैट्स योर क्वालिटी। देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद दिस, दैट यू हैव टू बी इनोवेटर। बहुत सारे लोग इनोवेशन की बात करते हैं, दैट इनोवेशन बड़े ही कॉमन एक बज़वर्ड है, इंडस्ट्री में खूब चलता है कि इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। लेकिन अल्टीमेटली इनोवेट करे कैसे, कैसे हम इनोवेटर बन जाए, कैसे कोई नई चीज इनोवेट कर सकते हैं, कैसे कोई यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन मैं आपको करूंगा, बट इट्स वेरी इजी, यू नो। ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ये कोई बहुत बियॉन्ड टेरिटोरियल या बियॉन्ड टेरेस्ट्रियल चीज नहीं है कि जो है आपको समझ में ना आए या जो आप ना कर पाए। या ये कोई बाई बर्थ जेनेटिक नहीं है कि कोई एक आदमी इनोवेटर होता है और एक नहीं होता है। एनीवन कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, दिस क्वालिटी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये जो इनोवेशन है,
इनोवेशन के बारे में बताओ। इनोवेशन वो चीज नहीं है कि कोई आपने एक बैठे बैठे नया आइडिया सोच लिया या कोई नई चीज सोच ली और वो इनोवेशन हो गया, ऐसा नहीं। इनोवेशन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सीक्वेंस में कनेक्ट करना और डिफरेंट रिजल्ट्स पाना ही इनोवेशन होता है। और इनोवेशन क्रिएट करने के लिए यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इंफॉर्मेशन रियल नंबर्स में अगर आप चाहते हैं तो 4 + 3 + 1 = 8, लेकिन अगर आप 1 + 3 + 4 करें तो वो भी =8 आएगा। लेकिन जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है ग्राउंड पे, उन डेटा में अगर आप सीक्वेंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेंज कर दें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आज से 15 साल पहले ये ऑनलाइन जो कंपनीज हैं जहां पर आप परचेज करते हैं अपने गुड्स, Amazon.com और Flipkart.com, तो आज से 15 साल पहले करीब Flipkart.com से सेल नहीं हो रही थी और अमेजन तो वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश था, कंपनी एस्टेब्लिश थी और दोनों का एक ही मॉडल था, बिजनेस मॉडल एक ही था। वो बिजनेस मॉडल ये था कि आप उनके साइट पे जाइए, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स को देखिए, प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स हैं अलग अलग एंगल से, उनका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, उसके प्राइस टैग्स हैं। आप वहां पर बाय नाउ करिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा आपके कार्ट में एंड देन यू गिव द नंबर ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और फिर आप उसको बाय करिए, पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और उनके वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होके आपके घर में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक कॉमन बिजनेस मॉडल था, ये कॉमन इवेंट्स थी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रही है। फ्लिपकार्ट ने उसमें एक छोटा सा चेंज किया उस समय, अब तो ये कॉमन हो गया है, हर साइट पे है, लेकिन 15 साल पहले ऐसा नहीं था। तो 15 साल पहले उसने एक चेंज किया कि आप पेमेंट अभी मत करो कार्ड से, और जब आपके पास मेरा डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट लेके पहुंचेगा तब आप वहां पर कार्ड से या कैश पेमेंट कर दीजिए। सो पेमेंट ऑन डिलीवरी, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये जो चेंज 15 साल पहले फ्लिपकार्ट ने किया, तो सडनली फ्लिपकार्ट की सेल जो है वो जंप कर गई एंड दे रीच टू 6,000 करोड़, और अचानक से वो एकदम जंप करते चले गए। और बाद में उसको अमेजन ने भी रियलाइज किया और बहुत सारे अदर शॉप ऑनलाइन डिटेल्स ने भी रियलाइज किया और फिर ये मॉडल वो लेके आए कि पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इस मॉडल में अगर आप देखें तो इवेंट्स वही है, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, बस केवल सीक्वेंस चेंज हो गया है। सीक्वेंस ये चेंज हुआ है कि वो पेमेंट पहले के बजाय बाद में आप ले रहे हैं। दैट्स व्हाट इज क्रिएटिंग ए न्यू एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, न्यू ट्रस्ट लेवल ऑफ कस्टमर, और आपके कस्टमर कर्व ऑफ रेवेन्यू आप क्रिएट कर रहे हैं विद सिंपल चेंज इन इट, एंड दैट इज एक्चुअली इनोवेशन। तो इनोवेशन में इनफैक्ट आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, किचन से लेते हैं एग्जांपल, कि जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पहले वाटर ले लें, वाटर को बॉईल करें, उसमें मिल्क मिला दें, और जब मिल्क और वाटर कंप्लीटली बॉईल हो जाए तो उसको गैस ऑफ करके उसके अंदर टी लीव्स डाल के आप उसको ढक के रख दें। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ी देर टी लीव्स उसके अंदर अपना फ्लेवर डाल दे, तो फिर आप उसको कप में पोर करके और जितनी भी शुगर चाहिए स्टर करके यू कैन ड्रिंक दैट टी, यू विल गेट अ डिफरेंट टेस्ट। लेकिन आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी ये है कि आप सब चीज एक साथ डाल दें उसके अंदर, टी, वाटर, मिल्क एंड शुगर, और उसको एक साथ बॉईल कर दें और फिर आप उस टी को ड्रिंक करें। टेस्ट में 100% डिफरेंस आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स एक ही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, वही टी है, वही शुगर है, वही मिल्क है, बट टेस्ट अलग हो गया। तो दैट्स व्हाट इज इनोवेशन ऑफ चेंजिंग द सीक्वेंस, रिजल्ट्स इज डिफरेंट। एक और वे है टी बनाने का जो होटल्स वगैरह में बनती है, जैसे ओनली वाटर एंड टी लीव्स दोनों को बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके केटल में रखिए, और जब आपको उसको पीना है तो मिल्क और शुगर अपने हिसाब से मिला के आप पी लीजिए, उसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। तो यू आर क्रिएटिंग 3 डिफरेंट टेस्ट विद द सेम इंग्रेडिएंट्स बाय जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस।
तो इसी तरीके से जब बिजनेस मॉडल में आप जाते हैं, आप प्रोडक्ट में जाते हैं, आप कस्टमर डिलीवरी में जाते हैं, तो उस समय आप सीक्वेंसेस को अलग अलग ढंग से चेंज करके आप नया इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं। कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सेम इंग्रेडिएंट्स में, सेम चीजों में आप इनोवेट कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, एडवर्ड डिबोनो ने एक किताब लिखी थी, लैटरल थिंकिंग। तो अगर आप लेटरल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करें तो ये आप बहुत आराम से इनोवेटर बन सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटरल थिंकिंग एंड वर्टिकल थिंकिंग? वर्टिकल थिंकिंग वो होती है जो आपके सामने आता जाता है, आप बस एक सेट पैटर्न में अपने माइंड को चलाते हैं और कोई चेंज नहीं करते। तो डेफिनेटली जब आप एक एवरेज प्रोफेशनल होकर कंपनी में काम करते हैं, तो जितना आपसे कहा जाता है उतना आप काम करते हैं, जो आपसे कहा जाता है उसी को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और अपने टारगेट्स अचीव करते रहते हैं। तो आप एक वर्टिकल थिंकिंग में चल रहे हैं। लेकिन लेटरल थिंकिंग में आप क्रिएटर हो जाते हैं। लेटरल थिंकिंग में यू क्रिएट डिफरेंट सीक्वेंसेस, यू क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड देन यू बिकम इनोवेटर। इसको हम अलग ढंग से अगर देखें, एक फिगर ले लें। सपोज आपके सामने एक ये रेक्टेंगल है और हम आपसे बोलें कि इस रेक्टेंगल को प्लस करिए, तो अगर आपकी वर्टिकल थिंकिंग होगी तो आप सिंपली इसको प्लस कर देंगे, दो जोड़ देंगे, दो रेक्टेंगल मिलके फिर से एक रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा। इट्स वेरी इजी और ज्यादातर लोग यही करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम बोले कि एक रेक्टेंगल और ऐड कीजिए, तो आप फिर इसको ऐड कर देंगे, एक और बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा। डेफिनेटली ये इसको बोला जाता है ब्लॉक्ड बाय ओपननेस, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ऐड। तो जब चीजें इजी दिख रही हैं आपको और सारी चीजें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में आता है जब सेल हो ही रही है, जब कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो क्यों हम चेंज करने जाएं, क्यों पंगा लेने जाएं। लेकिन ये जो पंगा हम लेते हैं, एक्चुअली यहीं पर हम इनोवेटर हो जाते हैं, यहीं पर हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाते हैं, यहीं पर हम क्रिएटर हो जाते हैं और यहीं पर हम अपनी वैल्यू ऐड करते हैं उस डिग्री में जो हमने डिग्री ली। तो क्या होता है कि अगर आप सोचना शुरू करें कि यार इसको और ढंग से कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप जैसे एक एग्जांपल ये आया कि आपने इसको एक बॉक्स में क्रिएट कर दिया, तो अल्टीमेटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप सोच सकते हैं। तो लेटरल थिंकिंग में होता ये है कि आप अलग अलग क्रिएशन करते रहते हैं। तो जो एक क्रिएट आपने किया, फिर दूसरा सीक्वेंस क्रिएट किया, तीसरा सीक्वेंस क्रिएट किया, फिर चौथा किया, एंड यू जस्ट सी कि रिजल्ट्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। और इसी को हम लोग लेटरल थिंकिंग बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है टू बिकम एन इनोवेटर। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, आई थिंक? ओके, सो ये जो स्किल्स मैंने आपको 4 बताई, एक तो वैल्यू एडिशन, दैट्स अ फिलॉसफी, देन बी अ क्रिएटर, and you're not doing a job, you are creating a demand, you are creating a new demand, and then you have to be a solution provider and not the operational solution provider. You have to provide the strategic solution to different problems. एक चीज और भी है कि जब आप solution provider होते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव इन अ सेंस कि आप कई बारी अपने बॉस के पास जाते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। तो बॉस आपसे एक ही चीज पूछता है कि डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट? तो आप ये कहते हैं कि सर सोल्यूशन तो नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली नेगेटिव। लेकिन जब आप उसके सोल्यूशन ढूंढने चलेंगे, इनोवेटिव सोल्यूशन, स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन, और कुछ नया क्रिएट करेंगे टू इरेडिकेट दी प्रॉब्लम, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन इज इनहेरेंटली पॉजिटिव। सो इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ एवरी डे, if you are creating, if you are a creator and not just the doer, and if you are a solution provider, and if you are innovator, believe me, your job cannot be imitated. आपकी job cannot be automated.
और कैनॉट बी डिजिटाइज्ड। आपकी जॉब बनी रहेगी और यही लोग सरवाइव करेंगे जिनके पास ये स्किल्स होगी। So with this, I think time is now getting over. लेकिन मैं ये चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर अभी मैं ले लूँगा, and with this I end, and I think just to move ahead, I expect that if you follow these things, you can enjoy being champion management professional who is rare and inimitable. Thank you very much for patient listening. Yes, Kartikeya. Yes, sir. Yes, sir. Swati, Thank you. are you Yes. there? Yes, sir. Thank you, sir, for your enlightening and insightful presentation. So with this, we will go ahead and take some time for questions now. Just a reminder, please be sure to type your questions in the chat box. For this session, I would like to invite Vishal Prasad. Over to you, Thank you Vishal. so much. Thank you so much, Swati. It was a wonderful deliberation by you. It's time to step up to the plate and get passionate about your work commitments to make your work more easier and to make e-learning courses more interesting. You don't have to get bored to listen, but instead you have to inspire and motivate everyone to learn new skills through e-learning courses and to change behavior and improve their performances. I hope you all have put your relevant queries and questions in the chat box. So without any further delay, let's start the question answers round. So the first question has been raised by Shivani saying, Sir, how can we change the behavior of our boss or how can we make him friendly to us? Over to you, Sanjeev, sir. Yes, Sanjay, sir. Okay. In fact, you cannot change the behavior of your boss. और दीवार पे सर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बॉस के अंदर, बॉस के एटीट्यूड आपके लिए चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन आपके प्रति उसका परसेप्शन चेंज हो सकता है। तभी होगा जब वो आपकी नीड होगी। अगर आपकी नीड नहीं है तो फिर वो आपको हमेशा एक सर्टेन टेंजेंट पे रखेगा। तो आपको करना क्या है कि इन चीज़ों की, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अपने आप को अगर आप ये वैल्यू एडिशन करते हैं और अगर आप इनिमिटेबल हैं, आप रेयर हैं, तो बॉस को ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा नहीं। तो उसकी मजबूरी है आपको रखना और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना है अपने बॉस को कि आपके बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनोवेटिव सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं है, स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं है, एक नया रेवेन्यू कर्व खींचने वाला कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये नहीं करते और एवरेज परफॉर्मर है तो यू कांट चेंज योर बॉस। Yes. Thank you so much, sir. So the next question has been raised by Smriti Upadhyay. Can't average performer be a professional performer? If yes, then why average performers called to be an average? Over to you, sir. Okay, that's a good question asked. In fact, एवरेज परफॉर्मर और ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, एवरेज परफॉर्मर और एक्सीलेंट परफॉर्मर दोनों में सब्जेक्टिव इसलिए है कि अगर आप रोबोटिक हैं, आपको जो टारगेट मिला आपने वो किया और आपने वहां पे माइंड गेम भी किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसा टारगेट ही सेट करते हैं कि आप उसको अचीव कर लें। तो अगर आपका रोबोटिक परफॉर्मेंस है कि जो जितना दिया उतना कर दिया, जितनी सैलरी मिली उतना जॉब कर दिया, एक्सीलेंटली किया, ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपकी आज के कॉन्टेक्स्ट में वो एक एवरेज परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि वो कई बार ऑटोमेटेड हो जाती है, कई बार डिजिटाइज हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि एक सेल्स पर्सन अगर आज 1000 लोगों को डील कर पा रहा है, तो फिर एक ही सेल्स पर्सन की जरूरत है, तो दूसरे की जरूरत ही कहाँ है? तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ेगी जब आप एक नई डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, जब आप एक नया लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर पाएंगे, जब आप एक नया रेवेन्यू कर्व क्रिएट कर पाएंगे, जब आप उनके प्रॉब्लम्स का एक इनोवेटिव सोल्यूशन दे पाएंगे जो दूसरा नहीं दे पा रहा है, जो एक मशीन नहीं दे पा रही है, तब आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मर हो सकते हैं, रेयर हो पाएंगे, तब आप इनिमिटेबल हो पाएंगे। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर आप बहुत ही रेगुलर ठीक ढंग से सारा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बट डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम कंपनी।
Thank you so much sir, for addressing the question. Our next question has been raised by Manisha Keshri. What initial challenges we as a fresher are going to face while joining the organization during COVID-19 situation, knowing our economy is usually declined and lots of pressure for the organization is coming. So how can we cope up with ease the changes? Over to you, Okay. sir. Okay. Okay. So as already I have described that in this COVID-19, the major challenge जो आपको फेस करना है वो ये है कि एक तो बिजनेस नहीं आ रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आपके सामने चैलेंज क्या आएगा? पेशेंट नहीं आ रहे हैं. अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो आपके सामने चैलेंज आएगा कि वो प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है. और अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में या बैंक में जाते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो कोई कस्टमर अवेल नहीं कर रहा है. तो एक तो ये चैलेंज है कि कोविड-19 में कि इकोनॉमिक रिसेशन है तो डेफिनेटली बिजनेस रिसेशन का मतलब यही है कि परचेजिंग नहीं हो रही है. तो परचेजिंग नहीं हो रही है तो आपके वो सेल्स नहीं हो रही है, रिवेन्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है. तो एक तो ये चैलेंज है. दूसरा चैलेंज आता है आपके सामने कि उस नए सिनेरियो में आपको एडजस्ट होना. इमोशनल चैलेंज होता है ये, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो स्लाइड्स दिखाई थी उस स्लाइड में मैंने बॉस को एक बड़ा ही अजब अलग ढंग से दिखाया था और जो सिचुएशन दिखाई थी कि एक चक्की में आपको वो पीस रहा है. तो अल्टीमेटली आपको क्रश किया जाएगा. फिजिकली तो नहीं कह सकते लेकिन इमोशनली आप क्रश हो जाएंगे क्योंकि आपके काम का कोई अप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा. आज के डेट में अभी क्या होता है, बचपन से हो क्या रहा है, जैसे आप कुछ भी अच्छा करें तो आपके पेरेंट्स कहते हैं वाह वाह मेरा बेटा मेरा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है. जब आप स्कूल में कुछ अच्छा करते हैं तो आपका टीचर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है कि उनको आपको मोटिवेट करना ही करना है, उनको आपको अप्रिशिएट करना ही करना है. जब आप कॉलेज में अच्छा करते हैं तो टीचर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको अप्रिशिएट. लेकिन रियल सिनेरियो में आपको वो अप्रिशिएशन मिलना बंद हो जाता है और वो ये कहा जाता है कि यार ये काम आप कर रहे हो, यू आर पेड फॉर दिस, तो अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट. तो वो जो इमोशनल क्राइसिस आती है ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती है सडनली व्हेन यू आर इनटू अ जॉब फ्रॉम योर कॉलेज. तो इस क्राइसिस को कितने अच्छे से आप फेस करते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि ये तो होना ही होना है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू आर. उसके लिए एक अलग इमोशनल सेशन करना पड़ेगा जिसमें कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंस आप कैसे हो पाए और कैसे अपने ईगो को आप डाइल्यूट कर पाए. तो जो भी इस टाइम में आपका ईगो बना डेवलप हुआ है उस ईगो को आपको एकदम क्रैश करना है, ब्रेक करना है. और आपकी पोजीशन, आपकी नॉलेज, आपका एमबीए, आपका डिग्री, आपकी फैमिली पोजीशनिंग, आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग, ये सब आप एक्चुअली है नहीं. दीज आर ऑल योर ईगो. तो इन चीजों को अलग करके आपको सोचना है कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव टू फेस व्हाटएवर इज कमिंग. एंड अप्रिशिएशन मिले या ना मिले आपको अफेक्टेड नहीं होना है उससे. तो ये दो सिचुएशन आपके सामने आएगी और बेसिकली प्रेशर के सामने दो आती है क्योंकि अभी आप नए हैं. तो एक इमोशनल क्राइसिस आएगी ये जहां पर लोगों के चेहरे आपको बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे और दूसरा आएगी आपके सामने ये जो चैलेंज है इकोनॉमी का, कोविड-19 का. Thank you so much, sir. I hope Manisha's doubts is clear now. Our next question has been raised by Divyansh Jaiswal. How can we change our average profession into best profession, like as we are the freshers for the company? यस, अब मैंने ये चीज़ आपको अभी अपने प्रेजेंटेशन में ही बताई थी कि जब मैंने ज्वाइन किया सियाम ट्रांस ग्लोबल में या नेरोलैक पेंट्स में, तो मैंने उस जॉब को कभी अपना पैशन नहीं समझा. मैंने उस जॉब को एक बस ऐसे समझा कि बस कर रहा हूँ सर्वाइवल के लिए. और शायद 10 साल मैंने काम किया उस दोनों प्रोफेशन में. 3 साल सियाम ट्रांस ग्लोबल में जब थाईलैंड में था और उसके बाद मुंबई और डिफरेंट प्लेसेस में नेरोलैक पेंट्स में. तो मैंने अपने जॉब को हमेशा ही एक बस साइड में समझा और यही समझा कि ये तो बस कर रहा हूँ किसी तरह से, बाद में चेंज करूंगा. तो उसको मैंने कभी भी पैशन में नहीं कन्वर्ट किया और ये गलती मैंने की. जो आपका फर्स्ट जॉब आप करने जा रहे हो, बाद में चेंज आप करोगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही कंटिन्यू करोगे, चेंज करोगे, जो भी करोगे जहां भी जाओगे, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें आपको डीप पैशन डेवलप करना पड़ेगा. यू हैव टू कन्वर्ट योर करंट प्रोफेशन इनटू योर पैशन एंड दैट्स योर यू कैन से दैट्स कंपल्सरी. एंड
यू हैव टू डू दैट। और अगर आप ये करते हैं तो आप एक एवरेज परफॉर्मर से डिफरेंट परफॉर्मर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका माइंड ही ऑटोमेटिकली उस ढंग से काम करने लगेगा। और यू वुड बी आइकन इन योर ओन कंपनी। तो ये आप करिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन डेवलप करना। पैशन सर्च करने का टाइम नहीं है, यू हैव टू कन्वर्ट योर जॉब इनटू योर पैशन। Thank you, sir. Basically, this will be the last question for the session. This is raised by Siddharth Yadav. Suppose I started a business just before this pandemic and done planning what I have to do by understanding the environment of my industry. After this pandemic, the environment is changed. So first of all, tell how to face this. And second, in this view of COVID-19 with limited resources and capital, how can we compete with already established business of my industry and increase my product selling? ओके गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट आने वाले समय में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। आपने एक वर्ड सुना जो कि आपके क्लास में अक्सर लोग लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप एक कोई भी स्मॉल बिजनेस एज ए बिजनेसमैन शुरू करने चाहेंगे तो शायद आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंज कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक लॉन्ड्री खोली मशीन लगा के, और आपने लॉन्ड्री, कॉर्पोरेट लॉन्ड्री शुरू की, आपने कोई एक स्वीट शॉप खोल ली, आपने कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया शुरू कर दिया जो और कंपनी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बिजनेस तो है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है या आपको स्मॉल बिजनेस के लिए जाना है या स्टार्टअप के लिए जाना है। स्टार्टअप एक अलग चीज है और एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यू क्रिएट ए न्यू डिमांड। तो जो मैंने आपको कहा, यू आर ए क्रिएटर, क्रिएट ए न्यू डिमांड जब आप करते हैं जो कि डिमांड है नहीं मार्केट में, लेकिन आपने उस डिमांड को क्रिएट किया, तब आपको चैलेंजेस ना बड़ी कंपनी से ना किसी और कंपनी से नहीं मिलता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2000 के आसपास जब एप्पल कंप्यूटर्स जो है बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और स्टीव जॉब वापस आए थे एप्पल कंप्यूटर में, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया आईपॉड। और आईपॉड का मतलब ये था कि आप आईपॉड में अब बहुत सारे गाने आप उसमें सेव कर लीजिए और अपना सुनते हुए घूमिए, और यू कैन लिसन टू थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स इन दैट आईपॉड। तो ये जो आईपॉड था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो उसने ये किया कि नया डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की कि कहाँ से, क्योंकि गाना अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो इलीगल हो जाता है। इंडिया में तो इलीगल का इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में ज्यादा है। तो अगर आप गाना डाउनलोड करते हैं तो कॉपीराइट किसी और के पास है, तो उसकी रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो रिकॉर्डिंग कंपनीज थी वो हैवी रॉयल्टी मांगती थी हर गाना आपको देने के लिए। तो एक उसने सॉफ्टवेयर बनाया iTunes। तो iTunes ऐप बनाने में उसने क्या किया, सब टाई अप कर लिया सारे रिकॉर्डिंग कंपनी से, और बोला कि आप बहुत ही मिनिमाइज कर दीजिए अपना प्राइस, सो दैट मिनिमम प्राइस में हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये गाना डाउनलोड कर सकते हैं हमारे iTunes से और iPod में, और उसके बाद वो उसको सुन सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये गाना डाउनलोड, ये iTunes मार्केट में आया, तो सडनली एक न्यू डिमांड क्रिएट हो गई गाना डाउनलोड करने की। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में था, तो लोगों के लिए $1 में बहुत सारे गाने डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों ने पे किया और डाउनलोड शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, $10 बिलियन रिवेन्यू जनरेट किया उससे इमीडिएटली बिल गेट्स ने। तो $10 बिलियन का मतलब हो गया 70,000 करोड़ रुपए। तो सिंपली गाना बेच के अगर कोई 70,000 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक न्यू डिमांड क्रिएट करने का क्या वैल्यू हो सकती है। तो अपने माइंड को आपको उसी साइड में ले जाना है कि बी इनोवेटिव, बी ए क्रिएटर। और कैसे आप इनोवेटिव होके अपने बिजनेस को स्टार्ट करें बाय क्रिएटिंग न्यू डिमांड। यू कैन गो इन करोड्स, you can go in thousands of crores, but it all depends that how unique is your business, how unique is your business model, और वो यूनिकनेस को आपको रखना है, and how your business model is creating new demand। एक रेस्टोरेंट खोलेंगे तो एग्जिस्टिंग डिमांड ही है,
दूसरे रेस्टोरेंट के कस्टमर ही आपके आ गए, तो वो कोई न्यू डिमांड नहीं हुई। न्यू डिमांड वो होती है जो किसी को समझ नहीं आ रही है और वो डिमांड दबी हुई है, अचानक से वो आपने क्रिएट कर दी, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो इनफैक्ट इन चीजों को समझ के वो चीज अगर आप डेवलप करेंगे, यू कैन क्रिएट मिरेकुलस परफॉर्मेंसेस। यस, एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, sir. Due to lack of time, we will not be able to take any further questions. So thank you so much, Sanjeev, sir. एक आलिया बोल रही थी लेने को, अगर कर सकते हैं ले Okay. लें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ali, please put forward your question. अगर दिया है क्वेश्चन। Just a minute, sir. She has actually typed the question. Alia, if you can unmute yourself and ask that question directly. Alia, are you there? Then one more question is from Rahul Agrahari. You can take that question. Vishal? Okay. Yes, sir. Sir, Rahul is asking, as we all know that labor crisis will take place in next few months after the lockdown. Sir, please suggest us for managing production. ओके, डेफिनेटली ये तो इंडस्ट्रीज, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम है, और जो कोई भी इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो या प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हो, लेबर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो सब अपने अपने प्लेस पे वापस चले गए हैं और वो माइग्रेंट लेबर है नहीं, तो डेफिनेटली स्किल्ड लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है और इंडस्ट्रीज को ये प्रॉब्लम तो आएगी। और अभी जो मेरी बात हुई बहुत सारे कंपनी वालों से, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सारे ऑटोमेशन की ओर ही जा रहे हैं। सो ऑटोमेशन की तरफ ही बढ़ना एक उनकी मजबूरी है, और अगर लेबर वापस आ भी जाती है तो भी वो ऑटोमेशन की तरफ ही यूज करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी लॉकडाउन खुला है तो दे कैन कॉल बैक देयर लेबर अगेन। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने लेबर को डील किया है इस लॉकडाउन के दौरान, या उनका ख्याल नहीं रखा है, तो इसलिए उनको लेबर की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आने वाले समय में अब कंपनीज को चेंज करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी, और उनको लेबर को रहने की फैसिलिटी, उनके फूड की फैसिलिटी, उनको हर फैसिलिटी ऐसे तरीके से देनी पड़ेगी कि इवन लॉकडाउन भी हो तो वो वहां पर सरवाइव कर सके। और अपने हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बात करते हैं, तो क्या जरूरत है हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, अपने लेबर को ही अगर हम जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, मुझे लगता है उससे बड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं होगी। सब अपने अपने वर्कर्स का ध्यान रखें, यही बहुत बड़ी चीज है। Thank you so much, sir, for addressing the question, and thank you for your valuable time. It was a great pleasure to listen to you, and like we all have gained so much knowledge and experience from you. Thank you so much for sharing. Now, handing the session over to Swati. Thank you, Vishal, for such a wonderful discussion. I think you have covered almost the question. Moving ahead, by this, I would also like to invite my few colleagues, Shivani and Sampada, to say a few words about the event and solutions being shared by sir. Sampada and Shivani, are you there? Yes. Thank you, Swati. I would like to share the 2 points that sir mentioned in the beginning of this webinar, that the present scenario in the business and market and what are the skills that you require to survive yourself and surpass everyone in the organizations were very well discussed. Shivani, 1 minute. Is it possible for you to means open your camera also? Myself? No, Yes, Shivani. Yes, sir. Yes, Shivani. Yeah, you can continue. Sir, the 2 topics were explained very well, and one of the point that I consider very important explained by sir was that corporations are looking for rare and imitable employees that are valuable to them instead of the robotic or routine work employees that are working.
So we need to be rare and imitable so that organizations can adopt ourself and feel that the importance of us in the organization in order to exist. The 5 points that sir discussed as a solution to this problem were very valuable to me. That is to add value to your degree, to change your philosophy, to be a creator. And one of the very important thing that sir took as a common example and explained that how can we convert our job into a hobby was dekho magar pyar se, that how can we convert our job into our hobby was very well explained by sir. And yes, the last point, that we should be a solution provider, and by giving a strategic solution to the company or to any problem. I learned many things from this webinar, and these things will surely be very useful to me in future. Thank you so much, sir. Welcome, welcome. Sampada, are you there? Sampada. Yeah, I'm there. Thank you so much, sir, for a great interactive session. And it was very useful. Like nowadays, COVID-19 pandemic is going on, and all your valuable suggestions and the session was very useful. As you have mentioned so many points which has already been covered by Shivani, but few of the left, like which I want to also thank you for that, because you have also mentioned we have to be an innovator and we have to motivate ourselves, because there may be a chance like in college and school, like our teachers and parents used to motivate us, but now in our professional life we have to motivate ourselves for doing good. And also you have covered not only the job perspective of the job perspective, but you have also covered the entrepreneurship and business point of view also, because if we have to motivate ourselves, then being into a business or being an entrepreneur, we also have to fulfill the corporate social responsibility towards our laborers and our employees, and we have to take care of them in this pandemic. And after that also, there were few more points which you said, that we have to make a strategic solution and we have to find those invisible points which we cannot see normally. Like being an average student or average professional, we have to go beyond our comfort limit, and then we have to watch those invisible points and try to connect them to find the strategic solution. It was a great session, sir. Thank you so much. Welcome, welcome. Thank you, Shivani and Sampada, for summing up the whole session in a beautiful way. At last, I would like to invite Karthikeya sir, Assistant Professor, Course Coordinator, MBA Program, for vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Swati. Sir, this is the reason why I usually look forward to listen to you on a regular basis. So after a long gap, I was not able to listen to you, but today my wish was fulfilled, and in a very comprehensive manner. First of all, as an individual, I'm really thankful to you, sir, for sharing all these thoughtful deliberation, because these things are not only going to help our students, but it is also going to help me personally as well, because the things which you have discussed is life-changing inputs. If we'll incorporate all those things, we are definitely going to change and make a mark on the society as well as on the organization. So it was commendable suggestion, insightful deliberation, sir. I have tried to jot down all important things which were there in the deliberation. So means I cannot resist to reiterate all those important things. I know time is less, but then also means I cannot resist to reiterate all those important points which came out of your deliberation, sir. So most important thing with the deliberation which you have started in the beginning, like in the beginning of your MBA career, nobody is going to ask how things are moving. But at the end of it, if you are going to join the corporate world, everybody will ask how things are moving and what is your contribution towards any particular organization of the society. So everybody must be focusing on your deliberation and on your contribution, and everybody would be very much conscious about you. And ultimately, you are going to a lone warrior. Nobody would be there to support you. Everything as an individual, we are all expected to do it on your own. Nobody would be there to support us. So if we want to survive in the market, first we have to excel as an individual. We have to learn different things. We have to adopt things very fast. Then only we are going to survive.
The very interesting thing, like these days, average people are going to face problem. If you are not going to equip yourself, chances are there you will be left behind. People who are keep on engaging themselves in their skilling and upskilling, they are going to survive in the market. So this is the need of the hour. As an individual or as a student, if we will keep on learning things on a regular basis and adopting things on a regular basis, we are definitely going to do some good in life. The most valuable points which sir has reiterated, like rare and inevitable employees are need of the hour. If you are rare in terms of qualities, if you are rare in terms of inevitable, nobody is going to replicate things which you are doing, then you are going to do well in life, as well as you are going to make a mark on your company. Very important and very important suggestion with being deciphered by sir. And all valuable points, like add value to your degree, keep on learning new things on a regular basis. You have to change your philosophy, like time for action. This, you are not going to stay back and say that things will automatically change. You have to do something good to take this as an opportunity. You have to be a creator, like new demand, new business, new level of excellence, new level of customer satisfaction, and new curve of revenue you'll have to generate. And you'll have to believe in the philosophy of double the game. I think means even I was working in corporate world, but my boss hasn't suggested this way. Otherwise, I would have done much better in my life. If we are going to double the game in any part of life, like as a teacher also, if I'm going to double things at this point of time, I'll definitely going to mark on the society or mark on my organization. So these were some valuable suggestions which came out of your deliberation, sir. Second, then the next point was become solution provider. And we usually crib about things. It is not expected at this point of time. We'll have to always be ready to provide certain solutions to our organization or to the society, and always try to give a strategic solution, not the layman solution which is not going to work for the longer period of time. Always try to deal strategically, and how to build those strategic solutions you have already mentioned. With explained everything with a beautiful example, sir. Then be an innovator, and for being an innovator, you have to think laterally, means lateral thinking is important at this point of time. So this was all important deliberation which I was able to jot it down. And believe me, sir, I am promising this from my part, that my students are going to incorporate all these things to change themselves in future, and they'll definitely make a mark on the society as well as the organization which they are going to join. But as an individual also, I'll try to incorporate all these valuable suggestions, sir. Thank you so much, sir, for taking out time. It was all your initiative that you wanted to interact with people who are going to join the industry. So it was all your effort and insightful theme selection, due to which we are able to organize this particular webinar. Thank you so much, sir, on behalf of my entire MBA class as well as PhD students who have contributed significantly, and you have answered all important questions very beautifully, sir. Thank you so much once again. Thank you so much, sir. Welcome. Love you, Karthikeyan. Thank you, sir. Without And you, two this important session things. was. Let me continue. Let me continue. One important thing I forgot. Like my people from MBA department, Vishal Prasad, who has taken this question answer session, then Swati, who has coordinated the entire event quite nicely, and two more students like Sampada and Shivani Singh, who have given lateral vote of thanks from their part. So apart from it, several people have raised questions. Those questions were also valuable. So all those people who have contributed significantly and being a lovely listener to the entire webinar was a commendable from your part. Thank you so much, everybody. Keep on participating in this kind of webinar. We'll keep on organizing these things. And if sir will spend some more time in future also on a specific topics, we'll definitely request sir to contribute in future also. Keep on contributing so that our people remain motivated to join the industry. Thank you so much. Sure. Thank you Love so you, much, Viresh. sir. Thank you, sir. Without you, this session was not possible. Thank you, sir. Thank you for organizing such an informative and interesting session. Thank you, everyone. We appreciate you for being here. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Thank you so much. Now you can leave the session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
MBA fourth people will stay back. I want to talk to you people. MBA fourth people. MBA fourth people will stay back. Karthikeya sir, we can stop the recording. Yes, 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 yes.